as you see, what is the meaning of democratic upsurge? मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक अपसर्जेस? हम लोग जब कहते हैं डेमोक्रेटिक अपसर्जेस तो उसका मतलब क्या होता है? When more and more people start participating in the democracy, दैट इज कॉल्ड एज डेमोक्रेटिक अपसर्च. क्योंकि उससे क्या होता है, हम जो मेन हमारे जो फिलोसफीज होते हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं. हमारे यहाँ पर जो पहला फिलोसफी था, दैट इज आफ्टर द इंडिपेंडेंस वी डिड नॉट हैव दैट मच प्रॉब्लम, बट हमारा पहला रहा था दैट एट्रीब्यूट्स टू 50 till 70. दैट वाज, वो पहला जो था, दैट वाज हाउ द चेंज टुक प्लेस with the participation of Indian adult voters to the democratic politics, both at center and in the state. Because immediately after the election, sorry, after the independence, the election commission was set up, and then more and more participation was there. Falsifying the Western myth that success of democracy requires modernization, urbanization, education. India जो था that had conducted the elections both at Lok Sabha and Rajya Sabha, and the democratic जो principle था that was passed. So that is India's first democratic upsurge. Participation of people in the elections, in the politics. The second is about the increasing political participation of the lower class such as ST, SC, and has been interpreted as second democratic upsurge. By Yogendra Yadav. This participation has made Indian politics, मतलब पहली बार में क्या हुआ था, more participation, and जो second आपका था, that made India as more accommodative to different classes. Although this upsurge did not make major change, especially Dalits, लेकिन इनका जो participation था, political platform था, that came. That started strengthening the self-respect and ensuring the empowerment. Then the third one, that is economic front, the LPG, which was started after 1990, is the attribution to the third democratic upsurge. It represents a competitive electorate market जिसमें सिर्फ आपका जो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं था, उसमें ये भी था स्टेट टू मार्केट, गवर्नमेंट टू गवर्नेंस, एंड स्टेट एज कंट्रोलर टू स्टेट एज फैसिलिटेटर. पहले हमारा जो था दैट वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स, क्योंकि वी वर नॉट, हम लिबरलाइज नहीं थे, तो 18 to 20 इंडस्ट्रीज हमारे जो थे दे वर अंडर द गवर्नमेंट ओनली. बट नाउ गवर्नमेंट वाज नॉट द प्रोवाइडर, इट वाज नॉट द कंट्रोलर, बट इट वाज अ फैसिलिटेटर. It facilitated the economy. The third democratic upsurge seeks to promote the participation of youth, who constitute a significant chunk of Indian society and have emerged as a real game changer. तो आपके तीन अलग अलग जो है चेंजेस आए थे, जिसमें पार्टिसिपेशन थ्रू इलेक्टोरल वोट्स, पार्टिसिपेशन ऑफ द लोअर कास्ट, एंड ऑफ कोर्स participation of the youth. This is how democratic upsurges came up. ये हमारा जो है that is the introduction, that what was the problem. आपके पेपर के अंदर जो जो क्वेश्चंस आएंगे इसमें डायरेक्टली लिखे हुए हैं that उस वक्त में after 67 Indira Gandhi, even though she did not get a good majority, but she came as a toward leader with tremendous popularity.
दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड वेन पार्टी कॉम्पिटिशन बिकेम बिटर एंड पोलराइज्ड, क्योंकि ये वो टाइम था जब कांग्रेस का जो इंटरनल जो उनकी लड़ाई थी वो सामने आया. दिस ऑल्सो विटनेस द टेंशंस, हमारा वो वाला पीरियड जब आपका इमरजेंसी जुडिशरी के बीच में जो लड़ाई. The Supreme Court found many initiatives of the government to be violative of constitution. The Constitution Party took position that the stand of court was against principles of democracy. On the other hand, गवर्नमेंट का कहना था कि कोर्ट जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं है और पार्लियामेंट इज सुप्रीम. Parliament is supreme, but if it makes anything which is against the principles of democracy, then it cannot be accepted. The Congress also alleged that the court was a conservative institution, मतलब वो पुराने सोच का है, and that it was becoming an obstacle in the pro-poor welfare programs. The parties opposed to the Congress felt that politics was becoming too personalized. उनको ऐसा लग रहा था यहाँ पर लड़ाई जो है वो डेमोक्रेसी और जुडिशरी की नहीं है. इट इज अगेंस्ट इंदिरा गांधीज पर्सनल ओपिनियन एंड जुडिशरी. सो दिस ऑल्सो बिकेम द स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, जो कि नाउ लेट अस कम टू द फर्स्ट इकोनॉमिक कंटेक्स्ट. कैसा था हमारा? इट वॉज प्रिवेलिंग इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत खराब था. The economic and social condition was at verge. बांग्लादेश की उसकी वजह से 8 million people had come into India as refugee. Then हमारा एक और प्रॉब्लम क्या था, मतलब कि एक तो चाइना के साथ था, ऊपर से पाकिस्तान के साथ था. आफ्टर द वॉर द यूएस स्टॉप्ड ऑल द एड्स. हमारा जो हमें जो थोड़े बहुत उनसे मिलते थे वो भी ख़त्म हो गया. द प्राइजेस increased manifold, and this led to an all-round increase in the prices of commodities, adding much hardship to the people. This was one. Secondly, industrial growth and unemployment जो था वो भी हमारा खत्म हो रहा था. As I said, the second industrial जो हमारा planning था, that was actually a failure. That was actually a failure. The government froze the salaries of its employees. तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी उनके अगेंस्ट थे. मॉनसून फेल था और इस सब की वजह से ओवरऑल इकोनॉमी हमारा कोलैप्स हो रहा था. In such a context, non-Congress opposition parties were able to organize popular protest. पहले they were not that much organized, but इस वजह से वो लोग एक हो गए. There was also an increase in the activities of Marxist groups, जो कि पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में नहीं सोशलिस्ट में बिलीव करते हैं. This group had taken to arms and insurgent techniques for overthrow of capitalist order. मतलब ये लोग तो मारा पीटी पे आ गए थे. This was one condition. Second, the Gujarat and Bihar movement. In Gujarat, around some students had started an agitation against the economic inflation, और इस वजह से वहाँ पर जो है प्रेसिडेंट रोल लगा. And at that moment, the opposition parties demanded fresh elections to the state legislature, to Gujarat. Morarji Desai, the leader of Congress O, who was a main rival when he was in Congress, announced he would go to indefinite if elections नहीं हुए. मतलब एक टाइम को तो मोरारजी देसाई had supported गांधी. Under intense proportion, मतलब कि दोबारा से elections हुए and Congress was defeated. In Bihar, students came, वहाँ पर भी सेम था. बट यहाँ पर जो जेपी थे, जिनका हम लोग पढ़ेंगे फिलोसफीज ऑफ जेपी एंड द टोटल रेवोल्यूशन, दो द पर्सन हु हैड गिवन अप द एक्टिव पॉलिटिक्स, उन्होंने स्टूडेंट मूवमेंट को स्टार्ट किया था. एंड ही ऑल्सो सेड दैट द मूवमेंट शुड बी नॉन वायलेंट. Everyone supported him, and this was what he called total revolution, यानी कि social, economic and political तीनों change होने चाहिए. And on the principles of गांधी जी, बंद, घेराव, स्ट्राइक, ये सब हुए. दूसरा,
एक तरफ तो आपका टोटल रेवोल्यूशन था, तो रेलवे स्ट्राइक भी चल रहा था. एज आई सेड, इट वाज स्टार्टेड बाय जॉर्ज फर्नांडिस. लेटर ऑन ही वाज पार्ट ऑफ कांग्रेस ओनली. दैट वाज आल्सो देयर, बट वो 18 डेज का जो था, दैट डिड नॉट हैव एनी इफेक्ट. नाउ जेपी जो थे, उन्होंने मतलब कि ही हैड स्टार्टेड अ मार्च जिसमें भारतीय जनसंघ, कांग्रेस, ओ भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी, एवरीवन who were opposing Indira Gandhi and who were projecting JP as an alternative, उन लोगों ने ज्वाइन किया था. So this was what happened. Now if we come to railway strike of 1974, जो मैंने आपको बताया that it was in May 1974, उन लोगों को ना बोनस और उनको सर्विस कंडीशंस नहीं मिल रहे थे. सो देयर वाज अ स्ट्राइक, लेकिन गवर्नमेंट जो है उन्होंने उस स्ट्राइक को इलीगल बोला. And ultimately, after 20 days, there was no settlement. So this was one problem. Now, who was Jaiprakash Narayan? He was one of the person who had been there in the national movement also. और उनका था कम्युनिटी, रीजन एंड राष्ट्र. मतलब सबसे ऊपर राष्ट्र, उसके नीचे कम्युनिटी, यानी कि फेडरलिज्म. और उनका था टोटल रेवोल्यूशन. मीन्स ही वांटेड दैट हमारा पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक तीनों जो है, इट शुड बी चेंज्ड. इट इंक्लूडेड राइट टू रिकॉल, इम्पोर्टेंस ऑफ विलेज मोहल्ला समितिस. मतलब उनका मानना था ऊपर के लोग टू ज्वाइन, मतलब जहां पर आपका प्रॉपर फेडरल सिस्टम हो, वेयर द पावर इज देयर विद द लास्ट सेक्टर ऑफ द country. It revolves around man who could be the real catalyst of change in India. Now, दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? ये तो दो प्रॉब्लम, ये तो एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम था. इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से रायट से बिहार और गुजरात में. दूसरी प्रॉब्लम जो इंदिरा गांधी के सामने आई, दैट वाज जुडिशरी. दिस वाज आल्सो द पीरियड व्हेन द गवर्नमेंट एंड द रूलिंग पार्टी हैड मेनी डिफरेंसेस विद जू. सबसे पहले, कैन द पार्लियामेंट अब्रिज द फंडामेंटल? नो, नॉट एट ऑल. पार्लियामेंट नहीं कर सकता. इसको तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने बनाया था, तो पार्लियामेंट उसमें कैसे चेंजेस कर सकता था? Secondly, can the parliament curtail the right to property by making an amendment? क्योंकि पहले right to property जो था, that was a fundamental right, but it was after this amendment only कि अब वो सिर्फ एक आपका जो है, it is directive principles of state policy में आता है. It is not a fundamental right. Thirdly, the parliament amended the constitution so that it can abridge fundamental rights for giving effect to directive principles. But the Supreme Court rejected this provision also. और इसकी वजह से क्या हुआ कि there was a division. Immediately after Supreme Court's put decision in 1973 in Kesav Nanda Bharati case, मतलब भारत, ये वाला वही है आपका जो आपके राइट टू प्रॉपर्टी वाला था. चीफ जस्टिस हमारे, मतलब देयर वाज अ वैकेंसी. एंड हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है अपॉइंट द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया? 3 सीनियर जजेस को साइड कर कर जस्टिस एन रे को जो है अपॉइंट कर दिया एज चीफ. एंड दिस इज रियली मतलब कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल. The appointment became politically controversial because all the 3 judges who were superseded had given rulings against the stand of the government. ये वो थे जिन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ गवाही दी थी. और इसका एक क्लाइमेक्स ये रहा. एक प्रॉब्लम और भी आई थी, और वो प्रॉब्लम ये थी कि इंदिरा गांधी जो है, शी हैड फॉट द इलेक्शंस ब्रेकिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. तो हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के इलेक्शन को इनवैलिड कर दिया. दिस इज, ये अभी आपको आएगा. जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा of Allahabad High Court passed a judgment declaring Indira Gandhi's election to Lok Sabha invalid. ये था जिन्होंने उनके खिलाफ किसी ने पिटिशन किया था that she had used the services of government servants as in her election campaign. तो अब she was no more MP, therefore she could not remain prime minister. On June 24th, the Supreme Court granted her partial stay on her being MP but could not part of proceedings in Lok Sabha.
मतलब वो MP तो रहेगी बट शी विल नॉट बी टेकिंग पार्टिसिपेशन। अब लोगों ने जो है ऑपोजिशन ने जो है they pressed for Indira Gandhi's resignation and organized a massive demonstration on Ramlila ground on 25th January, sorry, June 75. Jayaprakash announced a nationwide satyagraha for her resignation और उन्होंने asked the army, police and government not to obey illegal and immoral orders. लेकिन रातों रात on 25th January, June 1975 the government declared emergency as a threat to internal distress. उन्होंने आर्टिकल 352, ये याद रखना आप लोग, under the provision the article the government could declare a state of emergency on grounds of external threat or internal. वैसे ये wrong था but she had taken that step. The government decided that a grave crisis had arisen which made the proclamation of state of emergency. Constitution provides some special powers to government once an emergency is declared. यानी कि सारा पावर गवर्नमेंट को चला गया. द फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन खत्म, यानी कि स्टेट में जो गवर्नमेंट होती है वो अपना कुछ नहीं चला सकती है. एवरीथिंग विल बी इन द हैंड्स ऑफ सेंटर. सेकेंडली द गवर्नमेंट ऑल्सो गेट्स द पावर टू curtail और restrict एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. तो लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स है उसको भी खत्म कर दिया. On the night of June 25th June, Prime Minister recommended the imposition of emergency to President Fakhruddin Ali Ahmed और उसने भी कर दिया. मेजर न्यूज़ ऑफिस के जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो भी ख़त्म कर दिया. लीडर्स को अरेस्ट कर लिया. एंड एवरीथिंग द कैबिनेट वॉज इन्फॉर्म अबाउट इट एट अ स्पेशल मीटिंग एट 6 AM ऑन नेक्स्ट मॉर्निंग. This was the way she had misused the power. Emergency brought the agitation to an abrupt stop क्योंकि स्ट्राइक्स तो बैन थे. ऑपोजिशन लीडर्स जो हैं बहुत सारे तो अंडरग्राउंड हो गए थे, तो बहुत सारों को तो जो है अरेस्ट कर लिया गया था प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर. देन प्रेस सेंसरशिप था कि न्यूज़पेपर में कुछ भी बिना मतलब कि प्रायर अप्रूवल के नथिंग विल बी प्रिंटेड. द गवर्नमेंट बैंड RSS जमायत इस्लामी, मतलब जो मेन कम्युनल आपके है, जो अभी बीजेपी के एक हेड ही कह सकते हो आप. देन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स ऑल्सो वर सस्पेंडेड. इवन राइट ऑफ सिटीजन्स टू मूव टू द कोर्ट है ना, उसको भी हटा दिया. और इट ऑल्सो यूज्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन. सारे पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं दे कुड नॉट चैलेंज ऑल्सो. Several high courts gave judgment that even after the declaration of emergency, the court could entertain a writ of habeas corpus. उन लोगों ने बोला the Constitution bench of Supreme Court overruled the High Court and accepted the government's plea. यानी कि it meant that during emergency the government could take away the citizens' right to life and liberty. ये तो common है. This is written, even if it is written in the Constitution. But emergency की ज़रूरत नहीं थी. That was the main problem. There were many acts of dissent and resistance to the emergency. Who were not arrested went underground, organized protest. Newspapers like Indian Express and Statesman protested against the censorship by leaving blank space जहाँ पर आपके बनते. Magazines like the Seminar and Mainstream choose to close down. Many journalists were arrested जो लोग against लिखते थे. Many underground newsletters were published to bypass censorship. Kannada writer awarded with Padma and Hindi awarded with Padma. उन्होंने अपना मतलब वापस किया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ था. अब पार्लियामेंट ने क्या क्या चेंजेस किए थे मतलब ड्यूरिंग दैट. इन द बैकग्राउंड ऑफ द रूलिंग इलाहाबाद, मतलब इलाहाबाद के उसमें बोला गया था कि उनकी जो कॉन्टेस्ट है शी कैन नॉट कंटेस्ट. तो उसने जो है अमेंडमेंट कर दिया कि उनके इलेक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकते. एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन वी आर ऑल इक्वल. द 42nd अमेंडमेंट वॉज ऑल्सो पास्ड अमंग द वेरियस चेंजेस. इसके अंदर ये अच्छा था हमारा क्योंकि वो सेक्यूलर हमारा वर्ड ऐड हुआ था.
Among the various changes made this by this amendment, one was that duration of legislature was extended from 5 to 6 years. मतलब क्यों किया गया भाई? This change was not only for the emergency but for permanent. मतलब अब मतलब कि जो वो आपका जो गवर्नमेंट होगा वो 6 साल चलेगा, और इस वजह से इलेक्शंस आपके पोस्टपोन हो गए. Now there were many people who favored and against. सबसे पहले तो व्हाट वाज द नीड टू डिक्लेयर इमरजेंसी? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, लेकिन इंटरनल डिस्टर्बेंसेस किस चीज़ को कहा जाता है ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. देन another reason is that using the powers given by constitution, the government practically suspended the democratic functioning. The Shah Commission, जिसने इसको मतलब कि किया था इस कंट्रोवर्सी को, फाउंड मेनी एक्सेसेस. नॉट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेसेस? मेनी मतलब कि क्राइम, और यू कैन से द थिंग्स विच शुड नॉट हैव डन, आउट ऑफ द लिमिट, मतलब लिमिटलेस. Finally, there were varying assessment what lessons of emergency are for practice of democracy. अब गवर्नमेंट ने क्या कहा? The government argued that in a democracy, the opposition parties must allow the elected rule to govern according to its policy. बार बार एजिटेशन प्रोटेस्ट करते हैं, क्यों कर रहे हैं? Supporters said that in a democracy, continuously extra parliamentary politics targeting the government leads to instability. मतलब उन्होंने जो है इसको एक ग्राउंड बनाया कि उसको उन्होंने क्यों इंटरनल डिस्टर्बेंस बोला. All energies are diverted to maintenance of law and order. Indira Gandhi wrote in a letter to Shah Commission that subversive forces were trying to obstruct the progressive programs. और उसको जो है इस तरीके के एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के थ्रू जो है उस पर दबाव डाला जा रहा है. And some parties like CPA also believe there was an international conspiracy. It is believed that such circumstances, some restrictions on agitations were justified. उनका मानना था, CPI का मानना था कि ये जो मतलब कि हो रहे हैं प्रोटेस्ट, दिस आर इंटरनेशनल, किसी कॉन्स्पिरेसी के अंडर ये लोग कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने किया. JP and other opposition leaders felt that in a democracy, people had the right to publicly protest against the government. That is very true. हम अगर राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच बोलते हैं तो सबसे पहले तो यही चीज़ आती है हमारी. इसमें तो कोई सेकंड ओपिनियन है ही नहीं, तो हाउ कुड शी उसको वो कैसे सस्पेंड कर सकती थी? दैट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. दोज हु वर, मतलब, और उनका मानना था कि दीज वर ऑल्सो पीसफुल इन नेचर. दोज हु वर अरेस्टेड, उनके खिलाफ तो कोई वो लोग कोई क्रिमिनल्स तो थे ही नहीं. एंड द होम मिनिस्ट्री डिड नॉट एक्सप्रेस एनी कंसर्न. पहले उससे पहले तो उन्होंने ही कहा था इफ सम एजिटेशन हैड ओवरस्टेप देयर लिमिट्स, तो गवर्नमेंट उसको डील कर सकती थी. उनको डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग को सस्पेंड करने का या फिर ड्रैकोनियन मेजर लेने का कोई हक नहीं था. द थ्रेट वाज टू द, नॉट टू द यूनिटी बट टू द रूलिंग पार्टी. कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया कि जब आपके पूरे इंडिया को, नेशन को थ्रेट हो तो आप करोगे. इसमें तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को था, तो व्हाई इट वाज डन? As I said, that was one of the worst period. So there were many मतलब कि things that was done. The actual implementation of emergency is another contentious issue. The government said it wanted to use emergency to bring law and order, restore efficiency and implement proof. उन्होंने अपने 20 point program किया था, which was really, मतलब कि वैसे तो अगर देखा जाए तो it was good, जिसमें wages improve, more participation of women, bonded labor का abolition, privy purse का abolition, land redistribution. Starting में तो the urban middle class were generally happy that the agitation had come, or discipline was enforced on government employees. The poor and rural people also expected effective implementation, but these were all unfulfilled. लोगों का मानना था कि that was only to divert the attention.
The Shah Commission estimated that 1,11,000 people were arrested under preventive detention. There were some restrictions on press, sometimes without proper legal sanction. The Shah Commission report mentions General Manager of Delhi Power Supply received verbal order. और हम कभी भी गवर्नमेंट में वर्बल ऑर्डर पे काम नहीं करते, तो कैसे किया? Electricity was restored 2 to 3 days later after the censorship apparatus. सेंसरशिप apparatus मतलब कौन कौन सी चीज़ों पे कौन कौन सी चीज़ों को वो लोग पब्लिश कर सकते हैं विदाउट द नॉलेज ऑफ द गवर्नमेंट, कौन सी चीज़ों को वो नहीं कर सकते हैं, वो सारा. Sanjay Gandhi, who did not hold any official position, gained control on administration. He interfered, he demolished, forced sterilization, torture and custodial death. ये तो बहुत बुरा था. Arbitrary relocation of poor people. ये मैंने उस दिन आपको बताया था ना कि मेरे पापा बताते थे कि रातों रात पूरा का पूरा जुग्गी का जो एरिया होता था वो जला देते थे. And then they were forcefully relocated to other areas. Over enthusiasm about population control, compulsory sterilization. ये उस वक्त का था, मतलब उस वक्त उन्होंने, गवर्नमेंट कहता कि हमने तो लोगों को जो है अपने अंडर लेने के लिए किया है, उनको थोड़ा डिसिप्लिन करने के लिए कहा है. सो इट ब्रॉट बोथ वीकनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया. वन लेसन डेमोक्रेसी हमारा रहा. Secondly, it brought out some ambiguities regarding the emergency provision. Ambiguities मतलब जो आपकी क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इंटरनल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, and it is necessary that advice to the president to proclaim emergency must be given in writing by council of ministers. लेकिन council of ministers और cabinet ministers को तो अगले दिन सुबह 6 बजे पता लगा था. So that means completely the right has been violated. Thirdly, emergency made everyone more aware about the civil liberties. The court too had taken active role. Thus, in a response to inability of the judiciary to protect civil liberty during the emergency, many civil liberty organizations came. There was a tension between routine functioning of democratic government and continuous political protest. And the actual implementation took place through the police and administration. These institutions could not function independently. They were turned into political instruments. मतलब इन्हें वही करना पड़ता था जो इनको जो है ऊपर से ऑर्डर मिलते थे. दैट इज वाई दैट पीरियड वॉज, मतलब कि एक तरफ तो ये आपका स्ट्रेंथ भी था, बट आपका जो वीकनेस था वो ये था. Now what happened? The opposition came up with the slogan Save Democracy. And जो 1977 का जो इलेक्शन हुआ था आफ्टर 18 months, दिस वॉज देयर, उनका वो मुद्दा था. मतलब जनता पार्टी का जो है अंडर द लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण, दिस वॉज द वन. दिस पार्टी और दूसरा, सम लीडर्स ऑफ कांग्रेस who were opposed to the emergency also joined this new party. Some Congress leaders came and formed a separate party under Jagjeevan Ram, जिसका नाम था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, लेकिन बाद में वो जनता पार्टी के साथ हो गया था. द जनता पार्टी मेड इट्स कैंपेन, यही उनका कैंपेन था कि इंदिरा गांधी को हटाना है. जयप्रकाश नारायण बिकेम अ पॉपुलर सिंबल. और उनको ये भी था कि नॉन कांग्रेस जो पहले उनके वोट्स डिवाइड हो जाते थे कांग्रेस में, वो डिवाइड नहीं करेंगे. और पहली बार कांग्रेस वॉज डिफीटेड एंड जनता पार्टी जो है इट वन. लेकिन जनता पार्टी जो है ना वो अकेले नहीं आया था. इट डिड नॉट हैव अ क्लियर मेजॉरिटी, इट वाज अंडर कोalition. एंड देन it was an the Janata Party and its allies won 330 out of 540 and Janata Party won with 295. In North India, it was a massive electoral wave against the Congress. The Congress lost every constituency in Bihar, Uttar Pradesh, Delhi, Punjab. मतलब पंजाब में तो फिर भी उनका है थोड़ा सा. And they could only win one seat in Rajasthan and Madhya Pradesh.
जो उसका अपना था वहां से भी वो हार गई. इट रिटेन मेनी सीट्स इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड ओडिशा एंड सदर्न स्टेट्स में था, क्योंकि वहां पर इतना इसका फर्क नहीं पड़ा था. एंड मोर ओवर केरला वगैरह में तो वैसे भी पहले से सीपीआई वगैरह है, इसीलिए द फोर्स रिलोकेशन, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स स्टरलाइजेशन ये सब नॉर्दर्न स्टेट में था, इसलिए यहाँ इसका ज़्यादा. The middle class from North India were beginning to move away from Congress and Janta became a platform. And the election was not merely about emergency. But what happened? The Janta Party government that came to power after 77 was far away from cohesive. मतलब उनके जो philosophies थे, they were not coherent, they were not clear. After the election, there was a stiff competition, was a rival to Indira Gandhi कि कौन बनेगा. Charan Singh, Bharatiya Lokdal, a farmer leader, Jagjeevan Ram, eventually Morarji Desai became prime minister. But within the party, because ये सब नॉन कांग्रेस थे, इन लोगों ने मिलकर एक बनाया था ना, कांग्रेस तो अपने आप में एक ही था. The opposition to emergency could keep Janata Party together only for a while. Its critics felt Janata Party lacked direction, leadership, and common program. So they could not bring about a fundamental change. The Janata Party split and the government, which was led by Morarji Desai, lost its majority in less than 18 months. उन लोगों ने अपने वोट्स पीछे ले लिए. Another government headed by चरण सिंह, मतलब मोरारजी देसाई आपके थे, चरण सिंह आपके थे, और आपके जगजीवन राम थे. तो पहले मोरारजी देसाई आए, फिर चरण सिंह आए. बट इट वॉज फॉर्म्ड ऑन द एश्योरेंस ऑफ सपोर्ट ऑफ कांग्रेस पार्टी. बाद में उन्होंने अपना हटा लिया तो चरण सिंह का गवर्नमेंट भी गिर गया. वंस अगेन द इलेक्शंस वर हेल्ड एंड जनता पार्टी सफर्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव डिफीट. जहां 77 में उन्होंने इतनी जीत हासिल की थी, वो हार गए. कांग्रेस रिपीटेड इट्स ग्रेट वर्क विक्ट्री इन 71 और अब दोबारा पावर में आ गए. अब ये देखो लिखा हुआ है, द एक्सपीरियंस ऑफ 77 to 79 taught us the lesson that in democratic politics the governments that are seen to be unstable and quarrelsome are severely punished. क्योंकि उनके खुद के क्लियर आइडियाज नहीं थे, और ये जो प्रॉब्लम है ना, ये हम आज देख सकते हैं. इफ एनडीए इज इन पावर, इट इज बिकॉज द जो नॉन एनडीए है ना, दे डोंट हैव अ क्लैरिटी. Now, this is what we call as that the emergency वाला जो पीरियड है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल क्राइसिस भी कहते हैं. मतलब कांग्रेस तो शुरू से ही एक अम्ब्रेला पार्टी रहा, एंड नॉन कांग्रेसिज्म वो थे जो कि ऑपोजिशन अपोज करते थे एंड दे डिड नॉट वांट टू सपोर्ट द पॉलिसी. एंड जो आपकी नॉन कांग्रेस थे उसमें बैकवर्ड कास्ट आपका आया था. Now why emergency is called a period of constitutional and political? क्योंकि constitutional rights को violate किया गया था. The emergency and the other period is said constitutional crisis because that started the battle on parliament and judiciary. It was called a political crisis because the party in power had absolute majority and the leadership decided to suspend the democratic process. जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं दे शुड अबाइड इवन ड्यूरिंग द इमरजेंसी व्हेन द गवर्नमेंट वुड यूज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, इट शुड बी विद इन लॉ. लेकिन हमारे यहाँ तो वो लॉ से टूटे गए थे, इसीलिए द पॉलिटिकल क्राइसिस वाज मोर सीरियस देन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस. देन द रोल एंड एक्सटेंट ऑफ मास प्रोटेक्ट, देयर वाज अ क्लियर टेंशन कि भाई पॉपुलर पार्टिसिपेशन क्यों है, बट इट इज अलाउड. दिस इज शाह कमीशन इंक्वायरी जो कि इमरजेंसी के बाद बिठाई गई थी. जनता पार्टी ने अपॉइंट किया था अंडर जेसी शाह.
उन्होंने कई एलिगेशंस माल प्रैक्टिसेस बताए थे. दे हैड टेकन, इनफैक्ट इंदिरा गांधी पहले तो अपीयर नहीं हुई थी, बाद में जब अपीयर हुई तो कई आंसर्स उन्होंने नहीं दिए थे. एंड दिस वाज आल्सो टेबल्ड इन द टू. Until date, it is said that emergency was an unconstitutional setup. Now, the two main people, Ram Manohar Lohia एंड दीन दयाल उपाध्याय, ये वो आपका वो है जो कि सेकेंड उसमें आते हैं. एंड देन इट इज ऑल्सो द द एक्स्ट्रा मटीरियल और रेफरेंस मटीरियल ऑफ योर बोथ. राम मनोहर लोहिया is one of the person who advocated socialism. उनका मानना था सोशलिज्म विथ डेमोक्रेसी. उनका मानना था इंडिया में कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म जो है दैट कैन नॉट सर्वाइव, बोथ आर इररिलेवेंट. इसीलिए डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होना चाहिए. द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इन फॉर्म ऑफ फूड एंड हाउसिंग एंड मतलब सोशलिज्म मीन्स इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम. उनका मानना था 4 पिलर्स, चौभुजा राजनीति, दैट इज सेंटर, रीजन, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज शुड बी इंटरलिंक्ड. अभी हमारा क्या है फेडरल सिस्टम में, सम पावर्स आर गिवन टू यूनियन एक्सक्लूसिवली, some powers are given to state and some powers to the local government, and the relationship is there but still they are not interlinked. He argued the policy of affirmation action should not be only be for the downtrodden but for women, non-religious minorities, सबके लिए आप करो. Based on the premises of democratic socialism, Chaubhuja Rajniti, he supported a party of socialism. According to Lohia, we should have 3 symbols: spade, vote and prison. He was one of the person good, but दीन दयाल उपाध्याय बहुत अच्छा मानते हैं. अगर आप उनके प्रिंसिपल्स पढ़ते हो तो बहुत ही सही है उनका. He was a philosopher, sociologist, economist, of course a politician, और उनका था integral humanism, that is indigenous socio-economic model, जहाँ it should be the development of the person, not of the society. The aim is to ensure dignified life for every human being while balancing the need for individual and society. Means sustainable consumption of natural resources so that those resources can be replenished. It enhances not only political but also the economic, social, democratic and freedom. And it also seeks to promote diversity. उनका कहना था कि इंडिया एक डाइवर्स नेशन है और हमें जो है अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट भी करना है. तो इट इज द डेवलपमेंट ऑफ पर्सन, not the development of a society. Primacy of whole, not part. Supremacy of dharma and autonomy of society. He opposed the capitalist individualism, Marxist socialism, जो कि हमारे बाकी political leaders का था. According to him, these ideologies only consider the need of human body and mind. बट स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है, विच इज़ अ मिसिंग एलिमेंट इन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म. Basing his philosophy on internal conscience, pure human soul to be called chitti, he envisaged a classless, casteless, conflict-free social system. उनका मानना था कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहां आप किसी को भी अमीर गरीब किसी कास्ट कहीं से भी नहीं. अब दूसरे में क्या है कि हमने जो है वी हैव गिवन द कास्ट सिस्टम, हम लोगों ने जो है वी हैव गिवन देम द कास्ट सिस्टम. हम लोगों ने बोला है कि भाई अकॉर्डिंग टू द कास्ट या अकॉर्डिंग टू द EWS कोटा जैसे हम बोलते हैं, मतलब वी टॉक अबाउट द, तो हम ये जो सिस्टम बोलते हैं इसके थ्रू हम उनके मटीरियलिस्टिक नीड, वी आर ओनली डिफाइनिंग देम ऑन द बेसिस ऑफ द अर्निंग दे आर. उनका मानना था कि इट शुड नॉट बी बेस्ड और इट शुड नॉट बी कनेक्टेड विद एनी अर्निंग. आपको ओवरऑल डेवलपमेंट करना है. And many of the principles of DDU, that is Deen Dayal Upadhyay, are taken by BJP
they take these principles. Bharatiya Jansangh, which later on was renamed as Bharatiya Janata Party. So this is what we call as the democratic upsurge or resurgence, the three period when Indian politics had changed its nature. क्योंकि इंडिया में इंडिया जस्ट मतलब कि स्टार्टिंग में क्या है कि वी आर नॉट, अभी भी हम लोग जो है खुद को कंप्लीट लिटरेट नहीं बोल सकते हैं. वी कैन नॉट कॉल आवरसेल्व्स एज कंप्लीट लिटरेट. और नॉर्मली माना जाता है कि डेमोक्रेसी वहीं पर सफल हो सकता है जहाँ पर लोग पढ़े लिखे हों. दे नो द मीनिंग ऑफ व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, दे नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल राइट्स. अभी भी आप देख लो, द पॉलिटिकल राइट्स जितना हमें पता है ना, हमसे 100 गुना पता है यूएस वगैरह में. वहाँ पर आप जाओगे ना तो दे हैव द पॉलिटिकल राइट्स. लाइक अभी दे ऑल वर प्रोटेस्टिंग. मेरी कज़न रहती तो शी कॉल्ड मी अप एंड शी वॉज टेलिंग मी कि दे ऑल हैड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द फोर्सफुल वैक्सीनेशन ड्राइव. उन्होंने कहा वो हमारा राइट है. आप मतलब कि यू कैन नॉट पुट द रेस्ट्रिक्शंस कि अगर आपकी वैक्सीनेशन नहीं है तो आप यहाँ नहीं जाओगे, वहाँ नहीं जाओगे. वो हमारी मर्जी है हमें वैक्सीन करना है या नहीं करना. बट इंडिया के अंदर वी डोंट नो ऑल दीज थिंग्स. हमको तो ये लगता है कि नहीं यार ये ज़रूरी है, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, हमारे लिए ज़रूरी है. तो ऐसे बहुत सारे मतलब कि देर आर मेनी व्हाट वी कॉल एज राइट्स जो हम लोगों को शायद नहीं पता है, जो शायद हमें नहीं पता है. इनफैक्ट पता भी होगा ना तो भी हम लोग उसको लेने की जो है वी डोंट टेक द ऑडेसिटी. हमारे अंदर इतना करेज नहीं होता है कि हम उस चीज़ को पूरा कर सकें. आई नो आई मतलब कि आई हैव सीन सो मतलब मैं पढ़ती हूँ ना तो आई कम टू नो कि ये भी हमारे राइट्स हैं बट वी डोंट नो. इनफैक्ट आपका जो जिन लोगों ने पुण्या, आई थिंक पुण्या या अक्सा माइट हैव सीन निकिता और पुण्या एंड अक्सा, एक मतलब तमिल मूवी थी. और मुझे मूवी का नाम भी नहीं याद आ रहा. इट वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स. हमारा जो एक वोटिंग में होता है दैट अगर हमारा नाम वोटिंग लिस्ट में है और किसी ने प्रॉक्सी वोट डाल दिया है तो वी कैन स्टॉल द इलेक्शन ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी. मुझे भी उस मूवी का नाम नहीं याद आ रहा. इट इज़ मतलब मेरा बड़ा फेवरेट मूवी है वो. बट डिड वी नो. और वो तब जब ये मूवी आई थी ना, अभी जस्ट इट वॉज 2012 या 13 की बात थी, तब गूगल में सबसे ज़्यादा जो सर्च हुआ था ना वो यही हुआ था कि इज दिस लॉ देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड इट वॉज देयर, इट वॉज देयर. बट हमें नहीं पता था, हमें नहीं पता था. तो डेफिनेटली वी आर स्टिल अनअवेयर ऑन दीज. मतलब कि हमारा जो है सरकार, दैट वाज सरकार. वी आर स्टिल अनअवेयर. हम अभी भी अनअवेयर हैं. तो जो डेमोक्रेटिक का मतलब हो जाता है मोर पार्टिसिपेशन. और अगर हम मोर पार्टिसिपेट करेंगे तो व्हाट विल हैपन इज वी वुड डेफिनेटली कम टू नो अबाउट अवर राइट्स. डेफिनेटली गवर्नमेंट तो चाहेगा नहीं ना कि आप उनके हर मतलब आप उनको जो हो उनके लिए परेशानियां खड़ा करो. But at that moment, we will come to know about our rights. More participation will be there. The first, अब हमारा जो democratic जो changes आए थे वो था more participation of the voters. Second हमारा आया था when more participation of the people who belong to the downtrodden society. Third हमारा आ गया when more youth came into the power with the startups and with the industries bringing the economic. तो पहला हमारा जो था वो पॉलिटिकल था. सेकेंड हमारा था सोशल अपसर्ज. और थर्ड हमारा था दैट इज इकोनॉमिक अपसर्ज. जो पहला था हमारा वो पॉलिटिकल था बिकॉज उसके अंदर हम लोगों ने जो है पॉलिटिकल चेंजेस आए थे, मोर पार्टिसिपेशन. सेकेंड हमारा था सोशल, जो डाउन ट्रोडन था. एंड जो थर्ड हमारा था दैट वाज इकोनॉमिकली हम लोग जो है वी वर पार्टिसिपेटिंग. दैट वाज द पीरियड ऑफ एलपीजी. So this is the entire chapter what we call as मतलब कि the chapter democratic resurgence. Maybe in your because in the NCRT we haven't got the new book and that is why perhaps it is in the name of democratic crisis, but it has been renamed. You can check out on the CBSE website also, right? So with this the chapter is completed.